Namaste, welcome in our discussions of the rule and regulation on every Monday. Okay, so as you remember, last Monday we have discussed about the labeling, packing, and then the percentage of alcohol. And in this, we have gone through the 15 ml maximum volume and the 30 ml maximum volume and the 120 ml maximum volume for, yes, revised. So 15 ml for the Karpuraso, Ifenaso and the Bringamadaso, and the 30 ml with the 16% Mrita Sura, and 120 ml for the Mahadrakshaso, right? The 16%. And rest other 450 ml or the 750 ml, and the maximum is the 12%. Now, today we are going to discuss the 161A and the golden rule. Open the book. And open the book is here, exemptions in the labeling and packing provisions for export of Ayurvedic including Siddha and Unani drugs. So, be happy. Here is the provision. That is the exemptions in the labeling and the packing provisions for export purpose, right? And for export purpose, it has been introduced into the 2000. It is very important. Remember the year 2000. Why in the 2000? Why it was not in the 1992 when these added all the limitations of the alcohol? Right? The question is existing. Why in the 2000? Because this is the time when Western world, European world, American world started looking to the Ayurveda medicines. They started trying to have Ayurveda medicines for their betterment, for their good health. And so here was a need for some provisions for the export purpose too. Right? And before going through the laws, here is the one name of the certificate. You just remember COPP, Certificate of the Pharmaceutical Product. COPP, Certificate of the Pharmaceutical Product. This certificate is issued by, imagine, which organization? Do you think Ministry of Ayush or the Drug Policy Section? Not at all. Not at all. This is issued by CDSCO, Central Drug Standard Control Organization, CDSCO, right? That is the part of the Ministry of Health and Family Welfare. They have the good, they have international recognition. CDSCO is having the international recognition in the field of drug regulations. Just like the US FDA, in the same line, it is the analogy in country India, it is the CDSCO. So, this certificate for the export of the Ayurvedic medicines are issued by CDSCO because that is the international recognized organization, okay, for the purpose of the drug. And so far, they are also having this responsibility to issue the Ayurvedic medicines, certificate for the Ayurvedic medicine. Okay, now start reading. So, Rule 161A, exemptions in the labeling and packing provisions for export of Ayurvedic, including Siddha and Unani drugs. Number 1, label and package or containers of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs for export may be adapted to meet the specific requirement of the law of the country to which the said drug is to be exported, but the following particulars shall appear in conspicuous position on the container in which drug is packed and on every other covering in which that container is packed, namely Variyata, the priority for the labeling has been given to the requirements of the importing country. जिस देश में आपकी औषधि जा रही है उस देश का कानून अपनी औषधियों के लिए और बाहर से आने वाली, विदेशों से आने वाली औषधियों के लिए क्या कानून बना करके रखा है कि वहाँ पर ये लेबल और पैकिंग और लेबलिंग इस तरीके की होनी चाहिए, वो आपको पूरा करना है। मतलब अगर आपकी दवा UAE जा रही है
तो वहाँ की गवर्नमेंट का रूल। आपकी दवा यूनाइटेड किंगडम में जा रही है तो वहाँ का रूल। आपकी दवा अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो वहाँ का रूल। तो हर कंट्री का रूल मोर और लेस एक ही है, लेकिन कहीं बहुत बहुत अलग भी है और उनके पैरामीटर्स भी अलग अलग हैं। एक ही बैंगन जो बनारस से एक्सपोर्ट होता है या कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है दिल्ली की फ़्लाइट से, एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक कंट्री में उस पेस्टिसाइड रेजिड्यू पर वो एक्सेप्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बैंगन हम अपनी कंट्री में आने देंगे, हम ये टमाटर अपनी कंट्री में आने देंगे। उसी वैल्यू पर उसी पर दूसरी कंट्री रोक देती है कि नहीं, ये जो अगर आपके यहाँ पेस्टिसाइड रेजिड्यू इतना टमाटर में है या बैंगन में है तो ये हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, और पूरा का पूरा कंटेनर डिस्ट्रॉय किया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है या फिर आने लायक होता है तो आता है। तो ये सारी गंभीरताएं और बारीकियां आपको अपने एक्सपोर्ट मेडिसिन में देनी होती है, और इसीलिए एक्सपोर्ट करने वाली मेडिसिन COPP तो उसी कंपनी को मिलता है जिसके पास WHO GMP सर्टिफिकेट होता है। नॉर्मल GMP शेड्यूल T वाली नहीं चलती है वहाँ WHO GMP की आपकी प्रीमाइसेस होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन उसका उनके रिप्रेजेंटेटिव से होना चाहिए। चलिए तो इस पर चलते हैं। तो ये पूरी सी बात है कि लेबल और पैकिंग जो आपको विदेश भेजना है वहाँ पर थोड़ा अंतर होगा, जो अभी आपने पढ़ा देश के लिए, और जब विदेश भेजेंगे तो अंतर होगा। और उनकी हर पैकिंग पर जो रूल्स हैं वो जो लिखने हैं वो बता रहे हैं, और फिर जब आपको एकदम से डिस्पेंसिंग के लिए तैयार है तो आपको उस देश के कानून को फॉलो करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ए क्या कहते हैं, ये नेम ऑफ द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स सिंगल और कंपाउंड फॉर्मुलेशन, पैकिंग पर लेबलिंग पर ये आना चाहिए। सेकंड, द नेम एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द नंबर ऑफ लाइसेंस अंडर विच द ड्रग हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। ऑफ कोर्स ये देश में भी है और यही विदेश में भी है। आगे चलते हैं। सी, बैच और लॉट नंबर, ओके एग्रीड, द सेम। डी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर अलॉन्ग विद द डेट फॉर बेस्ट बिफोर यूज बिफोर। देखिए ध्यान दीजिए, अभी तक जब आप पढ़ रहे थे रूल 161 में, ये 161A है, तो इस पूरे क्लॉज में जो हम लोगों ने इसके 3 में ले करके 1 से ले करके और हम लोग जब 9th B तक गए थे, एक जगह भी ये नहीं आया था इसमें कि बेस्ट बिफोर यूज़ देना है, राइट। लेकिन ध्यान रखिए ये रूल 1992 का है। बेस्ट बिफोर यूज या एक्सपायरी पीरियड 1 अप्रैल 2010 से आया है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया, उसके लिए अलग से रूल बनाया गया, दैट इज़ 161B, इसी क्लास में, इसी सेक्शन में, राइट, इसी सेक्शन में, नॉट इसी क्लास में, राइट। तो यहाँ पर 161A कहता है कि आपको, और वो भी कब कह दे रहा है, सन 2000 में कह दे रहा है, राइट। इट इज़ इन द 2000 जब अमेंडमेंट हुआ कि जो आप विदेश भेजेंगे उनकी एक्सपायरी पीरियड डालेंगे बेस्ट बिफोर यूज। तो एक सिंपल सा सवाल आया था मेरे दिमाग में जब भी मैं इस पर इंटरेक्ट करता हूँ अपने स्कॉलर्स के साथ और आज आपके साथ, तो ये आता है कि क्या जब गवर्नमेंट के उसी हिस्से ने बेस्ट बिफोर यूज़ की पॉलिसी 2000 में ही लगा दी, तो क्या भारतीयों के लिए भी उस समय नहीं लगा देना चाहिए था? या भारतीय ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, किसी भी चीज़ को पचा लेते हैं? क्या भारतीयों के लिए जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का ये रूल बनाया कि नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट करने में आपको बेस्ट बिफोर यूज़ लिखना पड़ेगा, और मैं अभी इस पर क्लास इंट्रैक्शन ये एनालिटिका आयुर्वेदा पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई एम डिस्कसिंग इन माई दिस सेम चैप्टर ऑफ द सेम टाइटल स्टेबिलिटी प्रोफाइल in my classes which is uploaded in due course of time, I think up to the end of November or the beginning of the December, and then there will be the 5, 6, 7 series on the stability profile, and I have given the title stability with the sustainability, right. So under the sub theme of the stability with the sustainability I have discussed two recording has been done already, at least 3-4, then I shall make it in public view for you, so just wait for that. There I have raised a lot of questions and answered to
the whole story. Why it was in the Pharma Times 2005 and then the 2009. Okay, we will not, I'm going to repeat it all. So here, just my simple summation that if first, best before use is the concept for the export medicine in the 2000, why not at the same time for national use, internal use? Okay. So here, come to the E. That is the main ingredients if required by the importing country. If in a formulation importing country is asking to the manufacturer that you should tell us what are the ingredients, you have to provide. Okay. And for export, capital में EXPORT लिखना है, for export in the लेबल पैकिंग. हाँ, बहुत सारे हम लोगों ने किस्से सुने हैं ना कि भारत में जो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है एक्सपोर्ट हो जाती है, हम लोगों को कम मिलती है. पता नहीं कितनी सत्यता है, लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि अल्फांसो आम सारा जो अच्छा वाला है एक्सपोर्ट हो जाता है, जो सबसे अच्छा वाला सेव है वो भी एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो चाय होती है वो भी एक्सपोर्ट हो जाती है. पता नहीं कितना सही है गलत है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि भारत में जो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है और हम लोगों को बचा खुचा मिलता है और वो भी हाई दाम पर मिलता है. तो एक्सपोर्ट क्वालिटी एक अलग ही क्वालिटी है. तो शायद ये मेडिसिन बनाने में भी एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए, WHO GMP चाहिए, COPP चाहिए, और उसमें बड़ा बड़ा लिखना है कि फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है भाई, लिख दिया जाएगा. ठीक है. सो नीयत साफ हो तो सब कुछ ठीक है. सो हियर इफ इट इज़ द नेक्स्ट, provided that where Ayurveda, Siddha, Unani single or compound drug not classified under the first schedule or the schedule E1, आ गई खतरे की घंटी, is required by the consignee to be not labeled with the name and address of the manufacturer. The label on package or container shall bear a code number as approved by the licensing authority mentioned in Rule 152. फिर से पढ़िए इसको. Provided that where Ayurvedic, Siddha, Unani, single or the compound drug not classified under the first schedule or the schedule E1, right, is required by the consignee to be not labeled with the name and address of the manufacturer. The label on package or container shall bear a code number as approved by the licensing authority mentioned in the Rule 152. ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यदि आपका जो भी फॉर्मुलेशन वहाँ पर आप भेज रहे हैं उसमें शेड्यूल E1 की ड्रग का नाम अगर उसको आप बता के भेज रहे हैं कि जिसके यहाँ भेज रहे हैं कंसाइनी को, तो वो आप इसको कर सकते हैं. अगर आप चाहें और दोनों के बीच में आपके बीच में बातचीत हो तो आप वहाँ कोड नंबर डाल सकते हैं जो कि SLA ने, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट, second clause is here. The provisions of the Rule 161 shall not apply to a medicine made up ready for treatment. ये अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, शायद इसमें मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा. The provisions of the Rule 161 shall not apply to a medicine made up ready for treatment whether after or without alteration which is supplied on the prescription of a registered medical practitioner if the medicine is labeled with the following particulars, namely the name and address of the supplier and the word for external use only if the medicine is for external application. देखिए, हम शुरू में ही आपको ध्यान दिला रहे थे कि यहाँ पर ये बात ऐसी हो सकती है कि किस स्टेज में हो जा रही है. एक चलिए इसको आपके किचन से ही शुरू करते हैं. आजकल बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं रेडी टू यूज़. आपको शाही पनीर से ले करके और क्या क्या सब होता है ना, कोफ्ता वगैरह, पता नहीं चना मसाला, सब ये सब रेडी टू यूज़ आपको मिल रहा है. आपको खाली वहाँ से ख़रीदना है, उसके रैपर को आके घर पे गर्म पानी में डालना है कुछ मिनट के लिए, उसके पैकेट सहित, और उसके बाद उस पैकेट को उठाना है गर्म पानी के बाद और कट करना है, खाना है, और अपने बॉस को बताना है कि मैंने ही तैयार किया है, मैंने ही बनाया है. रैपर ऊपर सब उठा करके फेंक देना है सारी चीज़ों को. तो ऐसा लोग करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ऐसा कही है कि भाई इतना समय नहीं है तो 2-4 वैरायटी खरीद के ले आए, अच्छी अच्छी कंपनियों के, उनका टेस्ट वगैरह बढ़िया होता है, और खूब अच्छी अच्छी सब्जियाँ जो अभी मैंने नाम लिया पता नहीं क्या क्या, लबाबदार वगैरह वगैरह, और उनको बनाया.
तो इसी तरीके की कुछ चीज़ इस फील्ड में भी चलती है एक्सपोर्ट में। वो लेबल करके या मेडिसिन के रूप में नहीं भेजेंगे। अरे इसको ऐसे क्यों नहीं समझते हैं? बहुत सारे अभी भी जो हमारे प्राचीन समय के वैद्यगण हैं, उनके यहाँ बहुत सफाई से, बहुत तरीके से, बहुत हाइजीनिक वे में कई औषधियाँ सिंगल ड्रग रखी हुई हैं, और कोई मरीज़ आता है उनके पास तो वो उसमें से वो अपना नुस्खा लिखते हैं, और उनका कंपाउंडर जो सिद्धहस्त है वो सब में से मिला करके वो एक अलग से पुड़िया बना के दे देता है। वो कभी भी एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन का जो है उठा करके नहीं देंगे। वो सीतोपलादी चूर्ण नहीं देंगे, वो लवण भास्कर चूर्ण बनाया नहीं देंगे। वो वैद्य जी इतने सिद्धहस्त हैं कि प्रकृति के या जो भी है अपने मरीज को देखा, और अगर वो स्वास्थ्य तंत्र संस्थान से पीड़ित है, स्वास्थ्य रोगों से पीड़ित है या पाचन तंत्र के रोगों से पीड़ित है, तो उसके हिसाब से उसकी औषधि उसी समय तय की, नुस्खा दिया, और उनके कंपाउंडर ने वो बना करके दे दिया। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ इसमें आपके कोई भी लेबलिंग पैकिंग के रूल नहीं लगाते हैं। अगर आपने, जैसा कि ये चल रहा है, इस पर मुझे अच्छा से एक बार आपके सामने कभी क्लास में बात करेंगे। रूल रेगुलेशन में इसमें इसके साथ न्याय नहीं हो सकता कि वो इस तरीके के प्रैक्टिसेस हैं कि सिंगल हर्ब्स के पाउडर्स जाते हैं, विदेश में जाते हैं, उस पर खाली यही लिखा रहेगा आंवला चूर्ण, विभूतिकी चूर्ण, शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, राइट। और फिर उस कंट्री में वो चला गया, जिस कंट्री में भेजा गया, यूरोप में से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक, और वहाँ पर उसका यूज़ ये ज़रूरी नहीं है कि एज ए ड्रग ही हो, एज ए मेडिसिन ही हो, लेकिन उसका एक यूज़ ये भी लोग करते हैं। और फिर वो जब सारे एक्सपोर्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए अब वो वहाँ जा कर के उस कंट्री में वो एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, अगर उस रूप में लिया गया है, या एज ए डाइटरी सप्लीमेंट में कहीं डालते हैं, उसके लिए दिया गया। इवन कुछ का तो स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं, मरीच है। तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और इन पर ये रूल्स थोड़े से फैसिलिटेट किए गए हैं कि रेडी टू यूज़ कैटेगरी में एक्सपोर्ट के ये जो कोई भी रूल जो है 161 का पूरा 12 क्लास का एक्सपोर्ट वाला, वो नहीं लगेगा बल्क में, और वो सीधे जो इंपोर्टिंग कंट्री है जहां आप भेज रहे हैं उसके रूल से। और ये आपको एक सुविधा दी गई है, आपको अगर वो एक्सटर्नल यूज़ की है तो एक्सटर्नल यूज़ लिखना है, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर लिखना है बस। और ड्रम के मतलब उनको कंटेनर के कंटेनर्स भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल, रूल 161B, सेल्फ लाइफ और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द मेडिसिन इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन अमॉन्ग अस। थैंक यू एवरीवन।